I'll break it down. I'll break the answer. This is covered again in fourth and fifth mainly session. But pricing में पहले तो hourly pricing मैं ना बोल रहा हूँ. ऐसा कोई please कोई structure follow मत करो because that is absurd. And अभी this course is not at all advocating any sort of online वो portal model जहाँ पे आप कुछ hourly rates etc करते हो. That is absurd honestly क्योंकि you do it in small, I mean 10 minutes or you do it in 10 hours is your problem. Sorry sir, आपका lookout है as a designer or as a creative, client का problem नहीं है. Okay, this is number one, no hourly. Number two, you should try to be, सबसे पहले तो खुद को मतलब what is your credibility in market. Your credibility is justified like what I used to charge in my 6th month of my operation was different than what I am charging maybe today in my 5th year of my operation. Why? Because we have that sort of case studies or clients and their testimonials backing us. Right. So you need to, मैं step by step answer दे रहा हूँ उसका, थोड़ा tough question है ये. So पैसे की बात है. So we need पहले खुद की credibility को analyze करना पड़ेगा. Then अच्छा उस केस में what people do is sometimes if they are not that credible enough, still they charge a bomb. तो फिर क्या हो जाता है कि there are now transparent market है. So client or any prospect always prefers somebody who is more credible in terms of case studies and portfolio and clientele backing them कि कितने clients के लिए काम किया है. I'll also come to an answer जहाँ पे अगर आप अभी start कर रहे हो तो still you can how you can get your worth, वो भी possible है. Then you should also experience and credibility, two things. Number three, even if you are not experienced, even if you are not maybe you don't have that gamut of clients backing you. I hope English Hindi mix fine. Is everybody all cool ना? Yeah, because Hindi okay cool. अभी सबसे पहले तो जब मैं क्लाइंट के साथ पहले डील करता था काफी एडहॉक कम्युनिकेशन करता था. मतलब मैं खुद की ब्रांडिंग ही सही नहीं रखता था. आई यूज्ड टू पोजीशन माई सेल्फ एज अ वेरी एडहॉक डिजाइनर या फिर एक ऐसा डिजाइनर कि हाँ सर आप काम बताओ काम हो जाएगा टाइप्स. मतलब या आपको ब्रोशर बनाना है या आपको कंपनी प्रोफाइल बनानी है या आपको मतलब लोगो डिजाइन करना है. ऐसे आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विद देम. तो फर्स्ट आई ब्रॉट अ चेंज इन माय ओन सेल्फ के sir, what is your problem statement? Like I learned this hard way, but I got to know this from a very great friend of mine जो एक product designer था, अभी भी है. And वो उसको मुझे कुछ काम देना था. उसको मैंने उसको बोला वेबसाइट बनाना है. अभी उसने बोला भाई तू तेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता क्या है. कि अच्छा तू एक ई-कॉमर्स कंपनी स्टार्ट कर रहा है, वो टी शर्ट्स बेचेगी ऑनलाइन. तो ग्रेट, अभी तुझे क्या आउटपुट चाहिए. मैंने उसको बोला मुझे ये चाहिए कि ये पब्लिक इस तरह ले पाए, उसको ये एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वेबसाइट पे और इस तरह वो कस्टमाइज करवा के डिलीवर हो जाए. उसने बोला बस तेरा काम इतना खत्म हुआ, अभी यहाँ से मुझे जो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है वो मेरा काम है. सो उसने क्या किया, वो एक मेरे साथ पार्टनर की तरह ऑनबोर्ड आया. पार्टनर इन द सेंस नॉट द बिजनेस पार्टनर एज सच, बट ही वाज टॉकिंग टू मी एज a channel partner. I mean, he was not talking to me as a mere vendor. मतलब एक vendor जो खाली हाँ सर आप काम बताओ काम हो जाएगा, वो नहीं. मतलब you have to change your way of communicating with the client. Sir, which industry are you in? What is the sector? What is the product/service? It can be anything. B2B है, B2C है. What is the problem that you are facing? मतलब अगर आप as simple as अगर कोई मतलब then I never said कि मैं लोगो बनाता हूँ. Then I started with an approach जहाँ पे we define identity, we make sure that there is a design language, but we try to understand the problem of the brand. तो we या फिर एक छोटा एग्जांपल पैकेजिंग डिजाइन के साथ कह सकता हूँ कि किसी की अगर शेल्फ पे वो प्रोडक्ट पड़ा हो तो वो बिकना चाहिए. मतलब दैट इज द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइंट. तो वो अचीव करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्या क्या उसमें चेंजेस आने चाहिए. तो मैं सामने वाले की वैल्यू देखता हूँ कि वो कंपनी स्मॉल स्केल कंपनी है, जस्ट स्टार्टअप है, या मतलब एमएसएमई है या एमएनसी कंपनी है. तो
सामने वाली कंपनी का एप्लीकेशन कितना वास्ट है, प्लस सामने वाली कंपनी का एक्चुअली उसका वो कितना है, मतलब स्ट्रेंथ कितना है. बिकॉज मैंने जब एक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट करा फॉर अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इन मुंबई, दैट वाज मे बी फॉर 75,000 प्लस सम अदर कोलैटरल्स डिफरेंटली. जब वही प्रोजेक्ट मैंने एक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट करा फॉर एन एमएनसी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो सिर्फ मुंबई में नहीं है बट ग्लोबली है, तो दैट वाज इन 6 figures. थोड़ा सा व्हाई? बिकॉज their application is vast. They need the same identity to be applied on cargos, on aircrafts, on warehouses, in their global offices. There should be consistency across all the offices that they have, plus employee strength of more than 500. So how do you maintain that? See, challenge is not कि identity design करना, challenge is कि वो identity कैरी फॉरवर्ड करवाना उस कंपनी से और अप्लाई करवाना उस चीज को. सो योर वर्क इंक्रीजेस, आपकी गाइडलाइंस में काम आपके बढ़ जाते हैं. ओके, तो एज पर द कंपनी साइज भी डिफर करता है. कमिंग बैक टू माय पैकेजिंग, I always talk to a client in a manner कि अगर मैं ये डिजाइन आइडेंटिटी डेवलप, एक पैकेजिंग डिजाइन डेवलप कर रहा हूँ, प्लस इसमें एक ऐसा कम्युनिकेशन आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपका ये प्रोडक्ट 10 दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट भी करेगा और ज्यादा बिकेगा उनसे, उतना मेरी गारंटी है. एंड अगर नहीं हुआ तो मैं ये डिजाइन प्रोजेक्ट नहीं लूंगा. सो आई डोंट टॉक टू देम एज अ पैकेजिंग डिजाइनर, सर टेम्पलेट का इतना होगा, इसका इतना होगा, स्टॉक्स एक्सक्लूसिव, वो सब नहीं. पहले आई टॉक टू देम के प्रोडक्ट क्या है, कितना बेचना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ऐसी डिजाइन डेवलप करके देता हूँ जो 10 जन से डिफरेंट हो. एंड आप अगर मुझे कह रहे हो कि 25,000 इज टू मच फॉर अ मास्टर डिजाइन, देन आप साल में 25,000 यूनिट्स तो आप बेच दोगे ना. मतलब एटलीस्ट आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप थोड़ी सिर्फ 50 बॉक्सेस सेल करने के लिए स्टार्ट कर रहे हो. आप 25,000 अगर अपनी प्रोडक्ट और ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यू डिवाइड 25,000 by 25,000 pieces that you will sell in the span of 12 months. It's just 1 rupee you are bearing per packaging. मतलब अगर मैं पैकेजिंग डिजाइन की बात करूँ, सिमिलरली यू विल हैव टू टॉक वैल्यू विद द क्लाइंट. यू विल नॉट, मतलब यू विल हैव टू टॉक, थोड़ा आपको अपने आप में एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट और अपने कम्युनिकेशन में वो एक स्ट्रेंथ लेके आना पड़ेगा कि मैं सिर्फ डिजाइनर नहीं हूँ, मैं आपके B2B या B2C बिजनेस जो भी हो उसको समझता हूँ, आपके सेक्टर को समझता हूँ, आपके प्रोडक्ट और सर्विस को दोनों को समझता हूँ. उसकी रीच बढ़ाने के लिए या उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए जो करना पड़े वैसी डिजाइन में डेवलप करता हूँ. प्लस मैं आपकी प्रॉब्लम जो है, मे बी आपका पैकेजिंग की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है इसलिए सेल्स नहीं हो रहा, या मे बी आपका जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड आप जेवी कर रहे हो किसी और कंपनी के साथ, तो किस तरह होना चाहिए. तो ये बिजनेस लेवल के एस्पेक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, एंड उसमें आप कैसे वैल्यू ऐड कर पाओगे वो आपको सामने वाले को जस्टिफाई करना पड़ेगा. सो दे शुड नॉट फील कि दे आर जस्ट पेइंग फॉर अ वेक्टर लोगो. आई मीन दैट शुड नेवर बी अ अप्रोच. अपना ही अप्रोच अगर वैसा रहेगा ना, तो दे विल फील के यार ये तो जस्ट एक मियर वेक्टर लोगो है विद कपल ऑफ कलर्स एंड ऑप्शंस, व्हाई डू आई पे सो मच. So we'll so analyze your own credibility. It's okay if you are just starting up. So in that case, try to be a problem solver. So how do you be a problem solver? Step three, um, talk about their problem. That if you want a packaging design, is the sales an issue? Is differentiation an issue? Do you think that your packaging is similar to other brands packaging, thus you are changing it? I mean, or you are creating a new brand. मतलब main मुद्दा क्या है? Try to analyze that. Talk to them as an entrepreneur. Don't talk to them as mere designer. Or try to justify them के how much they are investing. I never, even in my proposal, I don't write that how much it will cost you or the cost to the company. I write your investment. A single word change in my proposal also changes their mindset, right? Okay, that is an investment. And if you are talking a turnover of, एक छोटी कंपनी भी होती है ना, वो भी साल में 50 लाख तो कर ही लेगी टर्नओवर. मतलब उससे कम कर रही है तो कंपनी, मतलब कैसे कंपनी है. सो मतलब मिनिमम 25 लाख तो करेगी.
25 लाख करेगी तो क्या 50,000 मतलब 1 लाख रुपया ब्रांडिंग में, मतलब या एक इतने में इन लोग डेडिकेट नहीं कर रहे अपना बजट. So when I talk to them in this language now, so they get very either guilty if they are too small. So first analyze who assessment बहुत important है. ये सारा मैंने जो steps कहा इससे पहले assessment भी बहुत important है. Client assessment. There are, I mean, 3 type of people. A जो बहुत aware है and they have the money, and then your ass is on fire कि अभी इसके पास पैसा भी है, इसको knowledge भी है कि what is branding all about. अभी इसको अगर मैंने price quote किया, then I have to make sure कि मैं proper problem solving करूँ और deliver करूँ. ऐसे को तो आप proper बेच ही दोगे. 2, ऐसे लोग जो awareness नहीं है, पैसा है लेकिन awareness नहीं है, so उनको थोड़ा आपको consult करना पड़ेगा. थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा कि what is branding, why branding, how it will really help you out. It is not just about a logo, etc. etc. थर्ड, ऐसे लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस करने के बाद भी उनको नहीं करना है, so don't bang your head against a wall. Chuck them. Your time energy will go. So don't focus on them. However you hungry might be for more. Okay. And so these are the assessment I do first, and then if it's 1 or 2 parameter, it's great. If it's 3, I eliminate. In second parameter, I consult them, and then I go ahead. And I also tell you the commercials. See, I have never seen any single individual who I come across who's charging less as 25,000 rupees and below जो काम कर रहे हैं ना. I don't know मतलब उन लोग क्या कर रहे हैं honestly. 25,000 slab is a slab, I guess, which justifies the time, energy, effort. If you are doing with an approach of problem solving, मतलब सामने वाली client की strategy कैसी होनी चाहिए, आपका विजुअल लैंग्वेज आप डिफाइन करके दे रहे हो, आप ब्रांड एलिमेंट्स भी, थॉट प्रोसेस. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन डेप्थ ब्रांड गाइडलाइंस भी उसी में मतलब करके दो, बट थोड़ा स्ट्रेटेजिक अप्रोच रहेगा तो मिनिमम 25,000 इज समथिंग दैट आई हैव सीन इवन bare minimum people charge, and 50,000 for very great credible designers in the market, and 75,000 and above for seasoned designers and experienced boutique agencies also sometimes. So boutique agencies I'm telling, not big ad agencies, boutique agencies like boutique specific to branding and design projects. So, and then then the sky is the limit depending on the magnitude of the client, company, project, etc. तो ये प्राइस स्लैब्स हैं. जहाँ तक डिजाइन और ब्रांडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक टू दैट. मैं कहीं UI UX या किसी और मोशन ग्राफिक्स उसकी बात नहीं कर रहा. So, जहाँ तक डिजाइन ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, ये स्लैब्स मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं जो डिसेंट आउटपुट दे रहे हैं. बाकी जो वो 2000, I don't know, I'm sorry I'm talking about that, but 2-5,000 वाले क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता. 5,000 4,000, I don't know what even they are doing, why they are doing, honestly. So don't be a vectorish logo designer, or even if it's see, using paid commercial templates are fine if you have some paid vector elements, but your strategy is important, is always, I would say. How your design help the client in solving that problem. So yes, see your credibility. Number 2, solve a problem. Number 3, don't charge too low, and slabs I gave you already. Talk value, don't talk time, that how much hour you will take. Talk value कि उनको कितना value add होगा इससे. Even if दिक्कत आ रही है negotiation में, तो justify with road mapping or something like that. मतलब अगर मैं identity में road mapping कहूँ तो मैं at least सामने वाले को एक clear cut वो दे दूंगा कि आपका which you will learn maybe in the tomorrow's session in strategy in depth, कि आपका विजन, मिशन, वैल्यूज, काफी चीजें हैं, तो वो मैं एटलीस्ट उनको थोड़ा सा गाइडेंस दे दूंगा. तो आपको खुद को अपस्किल और अपग्रेड भी करना पड़ेगा, बाय द वे. मतलब बॉटम लाइन, आपके कम्युनिकेशन में भी और आपके अप्रोच में भी, तो यू विल बी एबल टू सेल दैट.